Achin, yeah, Bani, thank you so much for that. Yeah. Well, in my case, I was a last minute entry. I got a call. भाई कोई एक्टर हैं जो शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई, वो पहुंच नहीं पाए, उनके कपड़े रेडी हैं और सेट रेडी है, तो अगर आप कल चंडीगढ़ पहुंच जाएं तो फिर वहां से हम, हाँ मेहरबानी हो जाएगी, हम you were the first choice, आपका नंबर नहीं मिला था. हाँ. Well, I'm जैसे आपने देखा, it's all guns and roses happening here, but mine is the emotional part, I suppose. So yeah, the heart, the emotional part in this, and I'm the Mata. So I'm Honey Singh's Mata. वो कितनी मेहनत करनी पड़ी. So yeah, that's it. So as I said, I met everybody. In fact, Pawan, I still knew. थोड़ा बहुत मिले थे हम पहले. I met everybody for the first time, and rest तो सब लोग सब कुछ बता चुके हैं. But the best thing is the vibe, the energy, and I think the unity and the fun that we had together, which I mean, like I say, inside out, somewhere down the line you'll see it. I mean, it's portrayed along the way. I think that's it. I think everybody said everything by now. Thank you, thank you, Anchin. And Honey performing for us every Yeah. evening free of cost. Free of the best part. I never have to go for a concert ever again. because Once we or had twice private it shows. happened. He said, "पाजी थल्ले आ जाओ, मैं speaker लेके आ रहा हूँ." Which lots of people, you know, they're queuing up for tickets and all. So that way, I mean, PTC doesn't know that. Otherwise, they would have said कि ये पैसे कम करो. Yeah. Also, a very interesting fact. A recipe that I learned from Honey, because there was these nights that he would come to our hotel and he would cook chicken for everybody. Because there'd be nights when everybody after the pack up, they'd want to hang out and stuff. He would invite everybody to his room, and there'd be lots of drinks and all of that. And he would actually marinate. इनकी इतनी सही recipe. And eventually he shifted to our hotel. और फिर shift भी करके, because he was like, यहाँ इतना प्यार है, मैं यहाँ आ रहा हूँ and all that. But yeah, so he would marinate the chicken. I feel like giving the recipe. So it's like eggs made, you marinate the chicken, you put spices. I mean, whatever, he'll tell you the recipe, but it was amazing. So Honey can also cook, in case nobody knew that. Now you know. Yeah, he just said that yesterday. He can cook Portuguese chicken. Yes, Portuguese style. And how he got the recipe is also a very interesting story, which he might tell you later on, if he feels like it. That's only for close friends. Sorry, privileged information only. That's for another time. Yeah, let's come back to Zorawar. Yes, so Zorawar. Yes, Zorawar is awesome. जोरावर से भी पूछ रहे थे. I know उनसे भी सुनना चाह रहे हैं आप इस फिल्म में. Was it difficult, Honey? मतलब इतना सारा प्यार मिल गया, ये अच्छी बात कर ली. तकरार की बात भी बताओ थोड़ा. Was it difficult for you? मुश्किल तो बहुत था एक्टिंग करना. और जब स्टोरी सुनी थी मैंने, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि एक सीरियस और बहुत सीरियस ड्रामा है, इंटेंस ड्रामा है, और साथ में एक्शन है. एक्शन का भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था. वी गोना कीप इट यू नो हैंड टू हैंड फाइट, और थोड़ा सा रियलिस्टिक सा रखेंगे. तो इंटरेस्टिंग था सारा कुछ. लेकिन मेरे को थोड़ा सा था कि हाँ मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर साथ में हैं. मुकुल इज देयर एंड पवन जी इज देयर. तो बाकी मेरे को विनिल ने बोला था कि जितने बढ़िया एक्टर साथ में होते हैं उतना आर्टिस्ट के लिए आसानी हो जाती है. तो मेरे को सुनने में तो सही लग रहा था. मैंने कहा ये पता नहीं है सही में होगा कि नहीं होगा. तो लेकिन फाइनली मेरे को बहुत हेल्प मिली. मैं कहना चाहूँगा, बानी ने भी मेंशन किया, पवन जी ने बहुत मेरी हेल्प करी. इनफैक्ट मेरे 2-3 सीन पवन जी के साथ बहुत सीरियस हैं. तो मैं पहले बहुत सीरियस हो जाता था कि मैं कैसे करूँगा इसको, क्योंकि मैं अपने म्यूजिक वीडियोस में जो लिखता हूँ वो मैं परफॉर्म कर देता हूँ. इट्स वेरी इजी, दैट्स माय ओन स्क्रीन प्ले. लेकिन यहाँ पे मैं एक जोरावर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके साथ निभा पाऊँ उसको ढंग से. तो स्पेशली एक सीन था जिसमें जोरावर एक स्पेशल एजेंट है, स्पेशल फोर्सेस का. तो एक सीन बहुत सीरियस है, वहाँ पवन जी और मेरा सीन है साथ में. तो शोल्डर टू शोल्डर शॉट था. मैं वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन है. तो मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि वो करें कैसे. इनफैक्ट विनिल भाई ने बहुत हेल्प करी मेरी थ्रू आउट द मूवी. ये मेरे को पीछे से वॉइस ओवर देते थे, जहाँ मेरे सिर्फ एक्सप्रेशन आते होते थे, ये मेरे को पीछे से वॉइस ओवर दे रहे होते थे. तो मेरे एक्सप्रेशन फिर उस हिसाब से बदलते थे. तो इन लोगों की वजह से जितना भी मैं कर पाया. आई होप सबको पसंद आएगी. तो उस सीन की मैं बात करूँ जो पवन जी के साथ था, वो बहुत सीरियस सीन था, और उसमें शोल्डर टू शोल्डर शॉट था. तो पहले विनिल ने बोला कि पवन जी का लेते हैं, उसमें वो दिखेंगे, तुम्हारा शोल्डर दिखेगा, तुम्हें फील आ जाएगी कि तुम्हें किस मूड में रहना है इस सीन के दौरान. मैंने कहा ठीक है. तो वो सीन इतना ज़्यादा सीरियस है, इतना ट्रैजिक है कि उस मोमेंट पे जोरावर को कुछ पता लगता है उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में. तो हमने ये तो डिसाइड किया था कि फौजी आदमी है, रोएगा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट उतना वो सीरियस हो जाए, उतना टच कर जाए उसको वो मोमेंट, कि वो स्क्रीन पे भी दिखे लोगों को कि हाँ ये किरदार अच्छी तरह निभाया गया है. तो जब
पवन जी का देखा मेरे को फील आ गया कि हाँ कुछ हम कर सकते हैं, मैं अब इस पर रिएक्ट कर सकता हूँ। तो जब पवन जी का शोल्डर था और जब मेरा फेस था, जहाँ मेन सीन जो मतलब वो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन वहाँ मेरे आने थे, वहाँ पवन जी ने जब क्यू देते हैं तो मेरे शोल्डर पे मेरे हाथ रखा हुआ और मेरे को क्यू दे रहे, और उन्होंने वो पूरा क्यू रोते रोते दिया, रोने की आवाज़ में, सो दैट कि मेरे को फील ज़्यादा मिले, और धीरे धीरे मेरा शोल्डर यूँ दबाते गए। तो वो सीन मेरे लिए इतना इंटेंस हो गया। इनकी तो पीठ दिख रही है, इनको वैसे कहना नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे हेल्प मिले कि मेरे एक्सप्रेशंस बूस्ट होके सामने निकले और मैं वो सीन ज़्यादा अच्छी तरह कर पाऊँ। तो रियली वांट टू थैंक पवन जी फॉर दैट। तो ऐसा होता नहीं है, मैंने पंजाब में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काफ़ी लोगों को रिकॉर्ड किया। जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर था तो मैं वहाँ देखता रहा, सिंगर्स के अंदर होता रहा कि मैं तो बढ़िया गा पाऊँ ना गा पाऊँ, वो ना गा पाए बढ़िया। तो वो मैंने अभी कुछ एक्टर दोस्त भी हमारे, तो वो भी ये आपस में देखते कि यार मेरे से एक्टिंग होना हो, साला वो ना कर पाए बस। तो यहाँ उल्टा रहा, यहाँ पे इतनी एक दूसरे को सब हेल्प कर रहे थे और सारा कुछ बढ़िया चल रहा था। और शूटिंग के बाद तो आपको बताया इन सब ने क्या क्या मस्ती करते रहते थे हम लोग। डर्बन में बहुत फन रहा, क्योंकि वो डर्बन मेरे लिए नया था, मैं पहले कभी साउथ अफ्रीका गया नहीं था, और बहुत बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था थ्रू आउट। और जहाँ तक सबसे मुश्किल काम मेरे को जो करने को इस फिल्म में लगा, वो जो 15 से 20 मिनट का फिल्म में जो रोमांस है, जो पारुल के साथ करने को मिला, वो इतना मुश्किल था मेरे लिए। और ये हमेशा वो बोलती थी क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ। On top of it, you will crack jokes when we are having our romantic scenes, and he would rap in those scenes also. और मुझे समझ में नहीं आता रहा मैं अब कैसे रोमांस करूं, मेरे को शर्म आ रही होती थी, मैं कैसे रोमांस करूं। मतलब एक लड़की के साथ मैं कभी किसी फ्रेम में दिखा नहीं ना आज तक, मेरे वीडियो में होती है बहुत सारी लड़कियां। तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे। तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, बहुत बहुत मज़ा आया। चंडीगढ़ में भी बहुत मज़ा आया, पटियाला में हमने शूट किया, हमारे अपने शहर में, दोस्तों के शहर है, और डर्बन में भी। थ्रू आउट सबका सारे लोगों का बहुत थैंक्स है। मुकुल ने बहुत हेल्प करी काफ़ी सीन्स में एज अ सीनियर एक्टर। और अचिंत जी का इनफैक्ट एक सीन है मेरे साथ बहुत इंटेंस, तो वो जब मेरे को उस सीन में कुछ भी नहीं करना था, मेरे को उस सीन में इनके पास बस बैठना था। और जब मैंने इनको एक्ट करते देखा फर्स्ट टाइम, वो मेरे शुरू के 10 दिन का स्केड्यूल था चंडीगढ़ में। जब मैंने इनको देखा एक्ट करते हुए सीन, तो मैंने फटाफट इनकी फ़ोटो खींची, मैंने पोस्ट कर दिया फेसबुक पे, एक्टिंग इज़ नॉट जोक मैन। सो बहुत इंटेंस सीन इन्होंने किया। सबकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन है इस मूवी के अंदर। और जैसे इन्होंने फिल्म भगाई है, मतलब भागती है पूरी फिल्म, स्क्रिप्ट भागती है, एक कहानी भागती है एक लड़के की। और जहाँ तक जोरावर का कैरेक्टर का कंसर्न है, हिंदुस्तान के अंदर चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, सबके लिए जो रोल मॉडल मुझे लगता है जो है, हमारे लिए तो बचपन से रहे हिंदुस्तान के फौजी और स्पेशल एजेंट्स जो हैं और जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, वो लोग शुरू से एक रोल मॉडल रहे हैं हम सबके। तो उस तरह का किरदार करने को पहली बार ही मिला और बहुत अच्छा लग रहा, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा। दिस इज ऑल अबाउट जोरावर, व्हाट आई फील अमेजिंग है। और let me add here, Honey is going to be the surprise of the package. Everybody is well established in their field and they know he's going to be a surprise. And my challenge is everybody will come back and say, wow, we didn't expect this. Wow. बस मेरे को एक ही चीज अच्छी नहीं लगी यहाँ पे, जैसे आप पारुल को बोल रहे थे ना कि इंटेंस सीन्स में भी ऐसे रैप कर रहे हो। अगर ज्यादा रैप करोगे ना फिर सुहाग रात पे भी सुहाग रैप हो जाता है। कोई नहीं, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। नाउ इट्स ओवर टू द मीडिया। आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं जी, प्लीज हो जाए। So we'll have a quick photo up and then we over to the media. Yeah.
हनी बहुत टाइम से आप कहीं नजर नहीं आ रहे थे, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आप इतने वक्त से कहाँ गायब थे? ये अभी बहुत लंबी कहानी है। ऑलमोस्ट 18 महीने तक मैं गायब था और काफ़ी अफवाहें थी कि इधर हूँ उधर हूँ यहाँ हूँ वहाँ हूँ। तो अभी हम लोग जोरावर के लिए यहाँ पे जोरावर की बात करते हैं। बहुत जल्द मैं एक बहुत एक्सक्लूसिव और डिटेल इंटरव्यू करूँगा आप लोगों के साथ, जिसमें वो पूरी स्टोरी बताऊँगा कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या, और बहुत इंपॉर्टेंट फेस है मेरी लाइफ का। सो आई विल टेल इट देन। थोड़ा सा अगर आप ब्रीफली बता सके। यू आर क्रिएटिंग मोर सस्पेंस नो नॉट सस्पेंस, मतलब आई वांट टू एक्सप्लेन इट। मतलब अभी ये वक्त नहीं है वो सब बात करने का, तो आराम से बताऊंगा। Right? Next. Your career is going great guns and it continues to do so as a music composer and someone who makes music. What prompted Honey Singh to turn to acting? You know, considering we've seen musical sensations over the past who've taken up acting assignments and their musical careers have come to a standstill. So was that somewhere the apprehension, or did that thought ever come to your mind? The thing is, as far as myself is concerned, I don't consider myself just a rapper or just a singer. I'm a music producer, lyricist. I'm a poet. I'm a singer as well, rapper as well. So, and acting is also a part of big entertainment. So I call it myself an entertainer. So that's the only thing which is left, acting. So I really want to learn acting because I feel it's a very tough job, you know, to portray someone else's character and to behave like that on screen. It's really tough. It's really hard. So I always wanted to learn, and I'm thankful to PDC who gave me this opportunity to do this movie. And I learned a lot in this movie, how to do acting. You know, what I believe कि काम कर कर के काम सीख सकते हैं, ऐसे कोई इंस्टीट्यूट में जाके नहीं आप सीख सकते। तो म्यूज़िक भी मैंने ऐसे ही बना के काम कर कर के ही सीखा है, इम्प्रूव हुआ धीरे धीरे, कैसे कैसे करते करते म्यूज़िकल मेरा लेवल बहुत बड़ा। तो उसी तरह मुझे लगता है कि एक्टिंग भी कुछ अगर मेरे को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे मैं कुछ भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। इससे पहले ये स्टोरी बहुत बढ़िया थी और एज अ लीड मुझे लिया जा रहा था, तो मैं थोड़ा और सीरियस हुआ। इससे पहले 1-2 अटैम्प्ट मैंने और किए हैं, वो ऐसे ही फ़न के लिए, तो बट उसमें भी काफ़ी कुछ सीखा। तभी शायद उसकी हेल्प से ये हुआ कि आज किसी ने सोचा कि मुझे शायद एज अ लीड भी ले सकते हैं, तो इसके बाद कुछ और भी कर सकते हैं हम आगे। लेट्स सी। But don't you think the focus will then shift? ना, मैं तो इच्छाधारी नागू, मेरे 7 मुंह है, मैं बहुत काम कर सकता हूँ, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता हूँ, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। My question to you is, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला you are acting in this film as a lead? What was your first reaction? कुछ नहीं, मुझे स्टोरी बहुत बढ़िया लगी, कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो लेट्स रोल इट, लेट्स डू इट। और फाइनली मैं ट्रैवल इतना कर रहा था कि मैं कहने की बात नहीं है, मैं 7 दिन में 5 अलग अलग शहरों में 3 अलग अलग मुल्क में होता रहा उस दौरान। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि यार एक जगह टिक जा तू, तेरे को स्लीपिंग डिसऑर्डर हुए जा रहा है, तो सो नहीं रहा है बिल्कुल, तो सोना ज़रूरी है और एक शहर में रहना ज़रूरी है ज़्यादा वक्त तक। तो मेरे को था कि हाँ एटलीस्ट हम शूटिंग करेंगे तो 1-1.25 महीने एक शहर में तो टिकने को मिलेगा कम से कम। तो वो सबसे बड़ा रीज़न था। तो वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, फिल्म की स्टोरी सबसे बड़ा रीज़न थी। सो आपको किसी ने टिप्स दिए थे, आपके अपने जो बॉलीवुड से फ्रेंड्स हैं या कोई भी आपके, जैसे शाहरुख हो गया, किसी से आपने कहा किसी से शेयर की ये बात की? नहीं, मैंने किसी को उस टाइम उस वक्त बताया नहीं था, बल्कि मेरे को सब पूछ रहे थे तू कहाँ जा रहा है, डर्बन में क्या करने जा रहा है, तो मैं कहा मैं ऐसे कुछ शूट करने जा रहा हूँ, किसी को बताया नहीं था। लेकिन सबको पता लग गया था कि मैं एक पंजाबी फिल्म कर रहा हूँ, तो सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, सबको को पता है। इनफैक्ट शाहरुख भाई से भी उस दिन बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि उनको भी दिखाया मैंने ट्रेलर फ़ोन पे जब हम लोग अवार्ड्स पे मिले थे। तो एवरीबडी इज इनकरेजिंग मी कि बढ़िया कर ही जाओ। ओके, हनी सिंह आपको कितना टाइम, मतलब कितने दिन की शूट थी आपकी, एंड इज इट दैट कि थोड़ा शूट डिले हुआ था बिकॉज ऑफ योर एब्सेंस, कुछ ऐसा कुछ था सर? नहीं, सिर्फ एक 2 दिन का क्लाइमैक्स का स्केड्यूल था जो रह गया था, जो मैंने फिर बीच में कंप्लीट किया उसको, बाकी सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका था। फ्रॉम ट्रेलर इट सीम्स कि इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी पंजाबी फिल्म की, अगर हम बात करें स्केल की बात करें, इज इट ट्रू? एंड डू यू थिंक दैट फ्रॉम दिस मूवी इट विल सेट अ न्यू बेंचमार्क? अब प्रोड्यूसर्स आपके भी इस पे हम राय जानना चाहेंगे, आपसे भी प्रोड्यूसर। हाँ, जवाब तो वही देंगे, बाकी इतना पता कि मैं हनी सिंह है तो सफेद हाथी है भाई। You're right, it is the most expensive film ever made in Punjabi, and we think that it will set new benchmarks. Yes, indeed. Hi, Honey. Congratulations for the trailer. The trailer looks amazing. बीच में रिपोर्ट्स आ रहे थे कि चीज़ें आपके और दीपिका के बीच ठीक नहीं है, दीपिका पादुकोण। तो जानना चाहूँगा क्या चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है।
ऐसा तो कुछ भी नहीं, पहली बार सुना, ये नया नया आ रहा है ये क्या, ये तो कहीं नहीं सुना। आपके और शाहरुख की जो टसल की न्यूज आई थी, कुछ भी नहीं है उससे ऐसा, रिलेटेड है ये? कभी भी नहीं है ऐसा। उनसे तो बहुत अच्छे रिलेशन, इनफैक्ट शाहरुख भाई से मैं मिला अभी तकरीबन 1.5 साल बाद, अवार्ड्स पे हम लोग मिले थे, मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तब करीम भाई वगैरह सब, मोहम्मद भाई वगैरह सब लोगों के घर पे फ़ोन आते थे कि कैसा है, कैसा हूँ, दे वर रियली कीपिंग चेक कि कैसा है कैसा नहीं। How to romance your leading lady by the king of romance for the film, considering you are very nervous? ना I don't think, अभी तक उन्होंने बताया नहीं, उनसे लूंगा डेफिनेटली मैं ज़रूर टिप्स। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? म्यूजिकली मुझे लगता है कि मिस्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने मुझे पूरी लिबर्टी दी कि स्टोरी के हिसाब से ज़्यादा गानों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पूरी फिल्म भाग रही है और इसका स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है, तो तकरीबन सिर्फ 3 ही गानों का मौका मिला करने का फिल्म के हिसाब से, तो 3 गाने कोशिश करी है कि बहुत अच्छे हैं और म्यूजिकली बहुत अर्बन रखने की कोशिश करी है गानों को, जो अभी गाने आ रहे हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਵਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਨਰ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਅਟੈਂਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? नहीं, ये तो बहुत अच्छी गल है। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज माई 3rd फिल्म और तीनों फिल्मां अलग कहानियां ने, अलग तरह की फिल्मां हैगियां एंड आई थिंक USP हैगी है कि एक तो हनी सिंह एंड दैन ਇਹੋ जी कहानियां जनरली पंजाब विच अटैम्प्ट नहीं की जाती, और मैं हमेशा कहना कि पंजाब इज़ फुल ऑफ स्टोरीज, यू नो, इवन इन बॉम्बे द फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाबी है, यू नो, सो पंजाब में कहानियों की कमी नहीं, उस ज़मीन में बहुत कहानियाँ हैं। और अगर जैसे ये फिल्म, अगर आप एक्शन देखें, जैसे ट्रेलर आप लोगों ने देखा है, जिस तरह से जिस भाव के साथ बनाई गई है, आई थिंक देयर इज नो लुकिंग बैक अगर पंजाबी फिल्म है, और ऑडियंस की कोई कमी नहीं है। तो I really, you know, I want to congratulate PTC for taking this step, which is a very good step to, you know, to begin with. You know, your friend Himesh has a film releasing that is Tera Surur, and as a part of film promotions, he had many live musical concerts to promote the film. So would you be having a similar plans to promote your film, having live concert at different places in India? No, not we haven't think anything like that, but definitely we'll plan something else. Let's see. Yeah. Honey, last time when we met Bhushan Kumar, he said that the reason why you are not present for all the music launches that happen is because you're not keeping well. We would like to understand what was the exact nature of illness that you're suffering from. I'll tell you. I'll explain you later, man. But why not today? Not now, right now. It's a serious topic. He's not suffering from divorce. Yeah. Okay. You're romancing Parul in the film. I would like to understand what is your brand of romance. Is it the Shah Rukh Khan type of romance or the Imran Hashmi type of romance? This is Zorawar kind of romance. Cool है? Yo-yo kind of romance. Honey, when it comes to music, you are king. But आपके absence में बीच में बादशाह has taken over. तो क्या कह सकते हैं? You look Let's at him. listen to the rap. How do you look at it? One last rap we'll do. रोल्स रॉयस चलाई है आपने कभी? रोल्स रॉयस और नैना में बहुत फर्क होता है। Just killed it with this जवाब of yours. ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਜਸ਼ਨ ਦੀ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਖੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਨ ਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਵੈਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੋਕੋ, ਪੈਗ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਟ ਧਰੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਲਾ ਮਰਜੀ ਮਾਲ ਚੱਕੋ ਚਿੱਟਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ, ਕਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਮੇਰੀ UK ਦੀ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟ ਅੱਜ ਟੈਟ ਹੈ। Thank you very much. Ladies and gentlemen, give it up for Zorawar.